ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੌਲਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। सीएम भगवंत मान ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਭਰਾ ਬਣ ਨਿਭਾਈਆਂ ਰਸਮਾਂ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਉਫਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਕਈ ਕਾਰਾਂ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਾੜਾ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਆਵਾਸ ਤੇ ਫੇਰੇ ਲਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਾਨ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਸੀਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮੇਤ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਸਿਰਫ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ IMEI ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਉਫਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਕ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੀ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਕ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਕ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਕ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ भी सुनाते हैं। टीम के पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि तुषार नाम का एक व्यक्ति है जो कि 2002 से मोटर मार्केट सेक्टर 38 वेस्ट में जो है वो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जो है वो बनाने का काम करता है। वो एक्चुअली नंबर प्लेट मेकर है। तो वो 189 उसका बूथ नंबर है 38 मोटर मार्केट में। लेकिन जो हमें एक चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन मिली हमारे सोर्सेज से कि वो जो आजकल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हैं जो भारत सरकार द्वारा जो है वो अभी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो सख्ती की गई है कि सभी गाड़ियों के ऊपर जो है वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो लगाई जाएगी। उसके मद्देनजर जो है वो अपनी जो है फेक नंबर प्लेट जो है वो बना रहा है और उसके पास बाकायदा डाई है और वो जो नंबर प्लेट्स वगैरह है वो सारी दिल्ली से लेकर आता है
लोगो जो है वो दिल्ली से लेकर आ रहा है और फेक नंबर प्लेट जो हाई सिक्योरिटी फेक नंबर प्लेट जो है वो बना रहा है अपने बूथ में। उसके आधार पे, इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो है वो हमारी टीम ने वहाँ पे उसके बूथ पे 38 वेस्ट मार्केट में जो मोटर मार्केट है वहाँ पे जाकर रेड करी। तो रेड करने के दौरान हमने देखा कि उसके पास नंबर्स ऑफ प्लेट जो है वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है उसके पास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की, इवन अदर स्टेट्स की भी ये जो है बनी हुई मिली। और वो जब हमने उसको पकड़ा था उस टाइम पे भी वो चंडीगढ़ की एक नंबर प्लेट बना रहा था। इसके बारे में जब हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से पता किया, एसडीएम ऑफिस से पता किया, तो ऐसा कोई भी प्राइवेट मेकर नहीं है जो सरकार द्वारा किसी को ऑथोराइज किया गया हो कि वो इस तरह की नंबर प्लेट जो है बनाकर अपने लेवल पे जो है किसी भी कस्टमर को दे सके। इसका जो तरीका है बनाने का, वो जो भी कंसर्न एसडीएम ऑफिस है वहां पर जाके जो है वो अपने गाड़ी के ओनर को अप्लाई करना पड़ता है और वहां पे अप्लाई करने के बाद बकायदा उसको टाइम दिया जाता है। उसके बाद जो उन्होंने किसी को ऑथोराइज किया हुआ है, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिनको ऑथोराइज किया एसडीएम ऑफिस से, वो नंबर प्लेट बनाकर लेके आते हैं और नंबर प्लेट बनाने के बाद एसडीएम ऑफिस में नंबर प्लेट लगती है गाड़ी के ऊपर और वहां पे उसकी फोटोग्राफ होती है। तो ये जो गोरख धंधा है सारी फेक नंबर प्लेट का चल रहा है। और मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से चंडीगढ़ वासियों को या और भी जो सराउंडिंग के लोग हैं चंडीगढ़ में ऐसी जो नंबर प्लेट बन रही है मार्केट में लगवा रहे हैं, मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे मैकेनिक्स के पास जाके, ऐसे मेकर्स के पास जाकर वो नंबर प्लेट ना बनवाएं, क्योंकि ये सारी की सारी जाली और फेक नंबर प्लेट्स हैं। जब भी आप कहीं पुलिस चेकिंग में अगर पकड़े गए तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे जो मेकर्स हैं नंबर प्लेट चंडीगढ़ में बना रहे हैं, हमें पता चला और भी एक दो जगह पे मोटर मार्केट्स में बन रही है, उनको भी पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन आम जनता भी उनके पास जाकर ना बनवाकर, जो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना हुआ है, एसडीएम ऑफिस जाके ही अप्लाई करे और वहां से अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बनवाएं। देखिए, ये 2002 से नंबर प्लेट्स बनाने का काम कर रहा है, लेकिन पिछले करीब 1 साल से ये जो है हाई सिक्योरिटी फेक नंबर प्लेट्स बना रहा है और ये 100 की, हजारों की गिनती में अब तक जो है ऐसी नंबर प्लेट्स बना चुका है, क्योंकि इसके पोजेशन से भी 35-40 नंबर प्लेट हमारे को जो है अब तक बरामद हो चुकी हैं। तो जो मेरी जानकारी के मुताबिक जो सरकारी रेट है या एसडीएम ऑफिस में लगता है वो 300 या 350 के करीब एक रसीद काटी जाती है। हमारे को वहां पे अपनी आरसी देनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं और उसके बाद जो है वो एक फिक्स टाइम दिया जाता है और उसके बाद नंबर प्लेट मिलती है। लेकिन ये जो है वो चंडीगढ़ के लोकल जो लोग हैं उनसे 1200 से लेकर 1000 रुपया जो है वो लेता था 2 नंबर प्लेट का आगे और पीछे गाड़ी के लगाने के। और जो अदर स्टेट के चंडीगढ़ के बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनसे वो मनमानी का रेट लेके किसी से 2000 ले लेता था, उनकी मजबूरी देख के किसी से 1500 रुपए ले लेता है। तो सर, क्योंकि ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जो गैंगस्टर या बैड एलिमेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो है वो प्रोवाइड होना, वो भी एक बड़ी हैरानी की बात है। तो पूछताछ में कुछ सामने आया हो? नहीं, इनकी लापरवाही तो इसकी बहुत बड़ा ये इसका क्रिमिनल एक्ट है जो ये सामने आया है। लेकिन हमें भी पता चला, ये कहने को कहता है कि मैं नंबर प्लेट्स जब लगाता था तो मैं आरसी चेक कर लेता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता था जो हमने भी देखा है। क्योंकि ये बाहर अदर स्टेट के जो जितने भी नंबर इसने बनाए हैं वो हमें अब तक जो तफ्तीश की है उसमें यही पता चला है कि ये सिर्फ फोन कॉल के ऊपर जो है नंबर प्लेट रेडी करता था बना के, पर गाड़ी को वहां पे आना पड़ता है क्योंकि ये जो पंचिंग मशीन है इसके बिना ये नंबर प्लेट नहीं लगती है। क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था सर इसका कोई? नहीं, अभी तक इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये 2002 से जो है इसी मोटर मार्केट में जो है ये नंबर प्लेट्स का ही काम कर रहा है बनाने। इसके ऊपर जो है चीटिंग के सेक्शन लगाए गए हैं 474, 467, 468, 471, 420। इसका मानना है कि 250-300 गाड़ियों के ऊपर लगा चुका है, लेकिन हमारा मानना है कि इससे भी कहीं ज्यादा गाड़ियों पे इसने लगाई होगी, क्योंकि जिस तरह की ये रिकवरी हुई है, जिस तरह की ये टेप इसके पास मिली है जो ये दिल्ली से लेकर आता है, और ये जो इसने ऊपर होलोग्राम लगा रखा है ये भी फेक है जो दिल्ली से लेकर आता है। तो हमारा मानना है कि इसने जो है वो हजारों गाड़ियों में अब तक जो है नंबर प्लेट लगा चुका है। देखिए, इसकी कोई भी पहचान जो है वो फिजिकली हम ग्राउंड के ऊपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम ऐसा ही होलोग्राम जो है वो जो ओरिजिनल होती है उसके ऊपर लगा होता है। लेकिन इस होलोग्राम को जब हम उतारने की कोशिश करते हैं तो बड़ा इजीली उतर जा रहा है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे जो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है ये होलोग्राम आसानी से उतरता नहीं है। ये ओरिजिनल होता है वो नहीं उतरता है, वो बहुत लेट उतरता है, ये उतर जा रहा है बड़ी जल्दी से। तो वो होलोग्राम आपने बारिश में भी देखा होगा, अगर गाड़ी भीग जाती है, डेली धुलवाते हैं, वो उतरता नहीं है, तो ये रिमूव हो रहा है बड़ी इजीली। लेकिन लोगों को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि वो इस तरह के जो नंबर प्लेट मेकर है उनके पास ना जाएं। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ।
कोई मरो जियो जो मर्जी करो, सरकार से कोई मतलब नहीं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सुनवाई तो होती नहीं जी है। हमें तो बहुत दिनों से मिला हुआ है, ये सारी चोरियाँ त्रेड़े आ रही है इन मकानों में, कोई ऐसी वो ही नहीं है अभी कोई आके देखे इनको। हाँ जी की है, नहीं 1-2 दफ़े की है, 2-4 दफ़े जब नहीं होती तो फिर आप ही चुप हो गए सारे। तो पानी पूरा पड़ता है, रसोई सारी चोती है, बल्कि अपने आप ही ऊपर से थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फिर वो थोड़ी बहुत ही देर होता है फिर वो ऐसे ही चोने लग जाता है। रेड़े पड़ी हुई हैं मकान में सारे ही, अभी पीछे भी सफेदी करवाई है तो सब ठीक करवाया, फिर वैसे ही होगी त्रेड़े आ गई अभी। पता नहीं, आते ही नहीं है इधर, कोई भी नहीं आता। अब तो कहना ही बंद कर दिया, अब क्या करे, वो कहते आते ही नहीं है, कंप्लेंट कराओ तब। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, शिकायत करते हैं तो कोई आता ही नहीं है और यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है और घर सारे काई सब जम गए हैं। हाँ जी, और जब सोए थे तो अपना आप ही दीवार गिर गई। यहाँ पर मतलब सुनवाई कोई नहीं आता, अगर शिकायत भी करो तो कोई आता ही नहीं। कोई कहता कागज इधर जा रखे, कोई कहता उधर जा रखे, हम तो खुद ही परेशान हो रखे हैं यहाँ पर। हमें पता कैसे रह रहे हैं हम यहाँ पर। अगर ये टूट जाएंगे तो फिर इन शिकायत करने आएंगे। इनको बोला था, कहते हैं यहाँ पर नोटिस भेजे हैं, ये है वो है, पर अभी तक नोटिस तो आया नहीं। कहते हैं नोटिस आ जाएगा तो ये घर चेंज करवा देंगे, पर अभी तक ये कोई नोटिस तो आए नहीं। जब ये घर लेंटर गिरने वाले होंगे तो ये बाकी सारे लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे बताओ। हम सुनवाई तो कुछ होती नहीं है यहाँ पर, कुछ तो सुनो यहाँ पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारी भी सुनो। कोई लेंटर गिर जाएगा तो कहाँ जाएंगे सब बच्चे, सब कोई मर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार बनेगा, किसका। रसोई सारी टूटी पड़ी, सारी छतें टूटी पड़ी, खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है, देख लो खिड़की भी इसमें है ही नहीं बिल्कुल। मकान की यही हालत है सबकी, जितने में इधर के हैं ना सबकी। और यहाँ तो बाकी तो लोग तोड़ तोड़ के बढ़ रहे हैं, उन्हें भी कोई नहीं पूछता कि क्यों तोड़ रहे हैं। ये कॉलोनी ऐसी है, इन्होंने पूरा झुग्गी बना रखे थे, तो झुग्गी से भी ज़्यादा बेहतर। झुग्गी में भी बंदे चले जाओ कंप्लेंट करने तो उनकी भी सुनते हैं, पर हमारी नहीं सुनते। यहाँ रिपेयर भी नहीं होती, यहाँ कोई आता भी नहीं है रिपेयरिंग करने के लिए, चाहे जितना टूटा हो फटा हो कोई नहीं आता यहाँ। नशेड़ियों का तो अड्डा बना ही है, जब खाली पड़ा है तो कोई भी बढ़ जाता है कि लोग ऐसे भी ताला तोड़ तोड़ के बढ़ रहे हैं, ताला तोड़ के बढ़ जाते हैं अंदर। लीक करती है, एकदम टूटी फूटी हैगी, एकदम गिरने वाली हैगी, एकदम त्रेट आई हैगी। सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता ही नहीं हैगी, कोई सुनता नहीं है यहाँ। चाहे जितना बोल लो, चाहे जितना कंप्लेन कर लो, कहते हैं टूटा फटा है कि यहाँ कौन रिपेयरिंग करवाएगा। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰੁਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 27.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।